اور ہم کسی مثبت راستے پر آگے بڑھ سکیں، پیش رفت نہ ہو سکی اور معاملہ جو کا تو رہا۔ اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں نے بحیثیت چیئرمین پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ان کے اختیار میں ہے وہ قدم اٹھائیں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں مشاورت کے ساتھ بہت جلد خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں جو میرے اختیار میں ہیں میں تحلیل کر دوں گا، تاکہ نئے انتخابات کی ایک فضا جو ہے وہ ہموار کی جا سکے۔ قومی اسمبلی کے ہمارے ممبران جو ہیں آپ کے علم میں ہے، وہ پہلے ہی اسمبلیوں سے باہر آ چکے ہیں اور حکومت کا یا پارلیمان کا عملی طور پر اب حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ تشریف لاتے ہیں لاہور میں، اور انہوں نے 2 اہم اجلاس منعقد کیے۔ ایک اجلاس انہوں نے پنجاب کی جو پارلیمانی پارٹی ہے، ممبران صوبائی اسمبلی، ان کو دعوت دی اور ان سے مشاورت کی، اپنا نقطہ نظر پیش کیا، ان کا نقطہ نظر سنا اور اپنا ذہن بنایا، اور اس کے اگلے دن انہوں نے خیبر پختونخوا کے ممبران صوبائی اسمبلی سے مشاورت کی، تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے ایک ڈویژن وائز ممبران کی میٹنگز کا آغاز بھی کر رکھا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے وفود کی شکل میں ان سے مل رہے ہیں۔ آج کی میٹنگ میں انہوں نے ہمیں سب کو اعتماد میں لیا اور یہ کہا کہ میں نے جتنی مشاورت کی ہے اور میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں اور میں نے جتنی نوک پلک دیکھی ہے، میں بالکل اپنی رائے پر مزید قائل ہو چکا ہوں کہ واحد حل نئے انتخابات ہیں، اور نئے انتخابات کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا ہماری سنجیدگی کا مظاہرہ جو ہے وہ اسمبلیوں کی تحلیل ہوگی۔ چنانچہ آج پارٹی کی قیادت نے عمران خان صاحب کو اختیار بھی دیا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ اسمبلیوں کی تحلیل، خیبر پختونخوا کی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل، وہ اگلے چند روز میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ جو سارا پروسیس ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے۔ اور ہماری خواہش ہے کہ اگر وفاقی حکومت پی ڈی ایم کی ابھی بھی وہ اپنے مفادات کو ملک کی مفادات پر ترجیح دینا چاہتے ہیں اور جنرل الیکشن کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے اور ملک کو مزید دبونا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا فیصلہ ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ماہ رمضان سے پہلے الیکشنز کا پروسیس مکمل ہو چکا ہو اور حکومتیں معرض وجود میں آ چکی ہوں۔ آپ اس کو سامنے رکھ لیں تو آپ کو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل میں تاخیر نہ کی جائے۔ یہ انہوں نے آج اپنا ذہن جو ہے اپنی سینئر لیڈرشپ سے انہوں نے اس کا اظہار کر دیا۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے اور سب نے اس کی تائید کی ہے، اور وہ ہے تیزی سے بگڑتی ہوئی ہماری معاشی صورتحال۔ سب کی رائے تھی، اور اسد عمر صاحب یہاں ہمارے ماہر بھی ہیں، معیشت کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، ان سب کی رائے ہے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ بزنس کمیونٹی کا، تاجر طبقے کا اعتماد کھو چکے ہیں، کسان پریشان ہیں، ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، جس لیول پر، جس گروتھ کے فگر پر ہم معیشت کو چھوڑ کے گئے تھے،
वो तनज़्ज़ुली की तरफ तेजी से आ रही है। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को देखें, वो गिरती चली जा रही है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को, जो कि वो अपना इन्वेस्टमेंट्स के लिए बोरोइंग करते हैं, उसको देखें तो वो गिर रही है। यानी कि हर इंडिकेटर जो है वो इशारा कर रहा है कि मईशत बिगड़ती चली जा रही है। IMF के साथ मामलात, डार साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है, बिगड़ चुके हैं और एक खलीज पड़ चुकी है उनकी सोच में, और मौजूदा वजीर खजाना की सोच में एक खलीज पड़ चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की जो एक मुज़ाकरा है वो एक खुलेआम, एक खुली किताब की तरह आपके सामने आ चुका है। तीसरी चीज, पार्टी ने इस चीज को अप्रिशिएट किया कि लोगों के जो इस्तराब था और जो पिटीशंस की शक्ल में मुतालबा था कि चीफ जस्टिस साहब अशरफ शरीफ साहब के जो उनका जो कत्ल हुआ है उसका नोटिस लें और उनके खानदान को इंसाफ मुहैया किया जाए। हमने, पार्टी ने अप्रिशिएट किया है कि चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो एक्शन लिया है और एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। उस बेंच के सामने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आ चुकी है। उस रिपोर्ट के सैलिएंट फीचर्स आपके सामने हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। और अशरफ शरीफ साहब की वालदा का जो नुक्ता नजर है वो भी सबके सामने आ चुका है और वो इंसाफ की तालिब है। हम समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। हम समझते हैं कि इंसानी हकूक की पामाली जिस अंदाज में होती रही है उसका कोई जवाज एक मुहज़्ज़ब माशरे में नहीं ठहरता और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसी तरह आपने आजम स्वाति साहब का जो पूरी रुएदाद है वो आपके सामने है। आपने देखा कि किस तरह आजम स्वाति साहब पे, शहबाज गिल पर जो केसेस बनाए गए और किस तरह इमरान खान साहब पर वजीराबाद में हमला होता है और वो अपनी मुद्दइयत में अपना पर्चा भी और अपनी FIR भी नहीं कटवा सकते। ये बहुत संजीदा मामलात हैं जिस पर हमारी कौम को, हमारी सिविल सोसाइटी को, हमारी जुडिशरी को और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये एतमाद का फुकदान बढ़ता चला गया वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हम एक जिम्मेदार जमात हैं, हमारी वफाकी सोच है, हमारी जमहूरी सोच है। हम आईनी किरदार के अंदर रहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम हरगिज कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो या मुल्क के किसी इदारे को नुकसान हो या किसी इदारे की तज़हीक हो। हम हरगिज ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं अगर पिछले 7-8 माह में अगर कोई खलीज पैदा हुई है, अगर कोई बदगुमानियां जन्म लिया है और उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, तो हम आइंदा आने वाले दिनों में इस किस्म की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें कि वो खलीज कम हो सके, उसमें इजाफा ना हो, वो कम हो सके और मुल्क जो है इस हैजानी कैफियत से बाहर आ सके। ये मेरा चौथा पॉइंट था। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहें तो आप कहें। जी, मैं ये अरशद शरीफ की वालदा का जो खत है जो उन्होंने आज लिखा सुप्रीम कोर्ट को, जो अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, हम समझते हैं हमारी पार्टी का ये मौकफ है डिस्कशन के बाद कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो उन्होंने नाम लिए हैं, जो जाहिर है उनके बेटे उनको बताते जा रहे थे क्या हो रहा है,
पूरी तफसील से उन्होंने डिटेल दिए हैं, तो हम समझते हैं कि ये हक उनका बनता है कि एफआईआर कटे उनके कंप्लेंट के मुताबिक, और ये भी हमारी पार्टी का और शाह महमूद कुरैशी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मीटिंग हुई इस्लामाबाद में। पीटीआई के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि इमरान खान की नजर में मुल्की मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। उन्होंने जो गुफ्तगू की उस पर रद्द-ए-अमल के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी तजियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी शाह महमूद कुरैशी की। उनका कहना है कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में असेंबली तहलील करने का इरादा रखते हैं चंद रोज तक, और हमारी ख्वाहिश है कि रमजान से पहले सूबों में नई हुकूमतें बन जाएं। बड़ी नपी तुली गुफ्तगू की है शाह महमूद कुरैशी ने। आपको लगता है कि अभी भी चंद रोज और मुशावरत की जाएगी, या वाकई में संजीदगी नजर आ रही है आपको इस बयान में? और सारा हमारी लाइन राब्ता मुनक़ता हुआ। इस दौरान जो बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने कही वो यही है कि हमारी ख्वाहिश तो ये है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाएं, रमजान से पहले नई हुकूमत रमजान तक बन जाए, उस तक बन चुकी हो। ये यकीनन उनका ये कहना था कि इमरान खान इस ख्वाहिश का वो रखते हैं और आइंदा चंद रोज में असेंबली तहलील कर दी जाएगी। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब परवेज इलाही जो है उनकी जानिब से जो इंदिया दिया गया कि 3-4 महीने तो असेंबलियां तोड़ने का इम्कान उनकी नजर में नहीं है, ये इंदिया वो वाज़ेह तौर पर दे चुके हैं। तो अब क्या होगा, ये एक मुश्किल सूरत हाल होगी पीटीआई के लिए, क्योंकि वो बार बार इस बात को पेश कर रहे हैं कि उनकी जानिब से असेंबलियां तोड़ने और नई सूबाई हुकूमतें बनाने की ख्वाहिश इमरान खान भी रखते हैं, पीटीआई भी रखती है, लेकिन जो वजीर आला पंजाब है वो शायद मुत्तफिक नहीं है। गो उन्होंने कहा है कि जब इमरान खान कहेंगे असेंबलियां तोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह इशारा दे दिया है कि अगले 4 महीने तक ऐसा कोई मंजर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, ऐसी कोई सूरत हाल उन्हें दिखाई नहीं। और मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो सदर आरिफ अलवी और वजीर खजाना इसहाक डार की जो मुलाकातें हो रही हैं, तीसरी मुलाकात हुई है जिनमें ये मामला भी जेर गौर आए हैं। इस्तीफे देने से मुतालिक, असेंबलियां तहलील करने से मुतालिक, और इंतखाबात कैसे हो सकते हैं, क्या लाहे अमल बनाया जा सकता है, एक मिडिल ग्राउंड कोई आ सकती है, इस पर मुशावरत की गई है। और साथ ही साथ अगर देखें वजी तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बयानात वो भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा है कि नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों में एक मखसूस वक्त लगेगा। तो ये सारे